Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, I welcome you to Sri Chandra's distance learning program. Dear students, we were dealing with the topic Al-Adabul Arabi fil Asril Umawi, Arabic literature during Umayyad period. In Umayyad period, Arabic literature has developed a lot. Not only prose style has developed, but also poetry has also developed during Umayyad period. How the poetry has developed? Poetry during Umayyad period. In Umayyad period is full of political crisis. So many political groups have developed. Many political groups has come into existence during Umayyad period. So poets used to encourage one party and they connected to one party, and they used to praise that party and criticize other party. So in poetry style, they used to write odes and verses against other parties, and they used to write the poems encouraging their own party. In this way, many poets have their livelihood also. They have made the source. They have made the poetry as a source for their livelihood. The poetry has developed a lot in Umayyad period. The first ruler of Umayyad dynasty was Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan was the first ruler of Umayyad period, and he was very fond of knowledge. When he established his power at Damascus, he triggered his mind towards religious books as well as other books. During Umayyad period, many new forms of poetry has developed, like ghazal poetry, or we can say this as love poetry, political poetry, oratory and pious poetry. These genres of poetry has developed during Umayyad periods. The poets of political poetry are very famous because they used to write against other parties. The three main political poets was contributed a lot during Umayyad period are Al-Akhtal, Jarir and Farazdaq. These three poets are worth mentioning. Beside them, other poets are also there who wrote and contributed a lot to the poetic genre. They used to write naqaid. Okay, they used to write naqaid. They criticize and taunt over other parties. And these three poets used to write against the parties, not only against the parties, sometimes they used to they used to do personal attacks on each other. Okay. Yesterday, in our last class, we have studied a style of poetry of Umar ibn Abi. Umar bin Abi Rabia, we have studied some poems, some meaning of his poem in our last class. Today we will study some more odes of the same poet. Who was the poet? The poet was Umar bin Abi Rabia. Umar bin Abi Rabia also wrote, this is a style of love poetry. They call me untrue to you, faithless in love. वो लोग मेरे को झूठा कहे हैं और बेवफा कहे हैं मोहब्बत में. अ ट्रैटर इन एब्सेंस, और धोखेबाज कहे हैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में. वो लोग कहते हैं
देन व्हाट हैज़ फॉलन माई आई, तो किस चीज़ ने मुझे गमज़दा कर दिया, मेरी आँखें भर आई। इम्यून टू थिंग्स फॉर विच अदर्स आर लाइसेंस टू फॉल, जबकि मैं जो है इन बातों से रुकता हूँ और दूसरे लोग वही बातों में मुनहमिक हो जाते हैं। As at evening when people turn to frown on man's tomfooling but call it wit, जब दूसरे लोग कुछ काम करते हैं तो लोग जो है उनको बेखूफ़ी की नज़र से देखते हैं और बेखूफ़ कहते हैं, जबकि ख़ुद के लिए ऐसा मामला नहीं है। जब खुद करते हैं तो वो लोग जो है बहुत होशियारी का काम समझते हैं। नॉर सेंश्योर अ पिलग्रिम्स dawdling eye caught by the wing of a dalliant flirt, जब हज के दिनों में हाजी लोग आते हैं तो ऐसे लोग जो हज के दौरान में हज करते हुए जो है ना गैर शरई हरकत करते हैं और जो है ना फ्लर्ट करते हैं दूसरों से, तो वो एक जो है ना हाजी लोग उनको गुस्से की नज़रों से देखते हैं। He who had hoped to lessen his sins, ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग अपने गुनाह कम करने के लिए, बख्शवाने के लिए और ख़त्म करने के लिए आते हैं, instead returns to encumbered the words, यहाँ पर कम करने के लिए तो आते हैं लेकिन बजाय कम करने के और उल्टा और अपने गुनाहों को बदतरीन बना लेते हैं, कह रहा है शायद। What has curbed me, किस चीज़ ने मुझे काबू में रखा है, इज़ नॉट अ पेटेंट एव बट लव, किस चीज़ ने मुझे काबू में रखा है, कोई चीज़ नहीं है बल्कि वो मोहब्बत है। विच हैज़ लेड अ गार्ड ऑन माई हार्ट, वो मोहब्बत ही मेरे दिल पर पहरा दे रही है, ये जो है उसने कहा। वन ऑफ द बेस्ट नोन ईस्टर्न पोएट्स वॉज फरजदक एज वेल, फरजदक भी एक जो है मशहूर शायर था उमैयद पीरियड का, जो तमीम कबीले से ताल्लुक़ रखता था, बनु तमीम से। हु वॉज बॉर्न इन द ईयर 650 सी, 650 ईस्वी में ये पैदा हुआ। और फरजदक सेटल्ड इन बसरा, बसरा में जा बसा। लाइक मैनी ऑफ हिज ईस्टर्न पीर्स ही वॉज मोर देन यूज्ड टू यूजिंग हिज वर्ड्स टू हैव अ गो एट द अथॉरिटीज़, ये जिस तरीके से मशरिकी शायरा हमेशा से करते आए हैं, ये भी वही करते थे और बादशाहों के उस बारे में और गवर्नर्स के बारे में अपनी शायरी लिखते थे। एंड द फॉलोइंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल, अब आने वाली जो है ना एक बहुत बेहतरीन मिसाल है उनकी शायरी की। इन इट ही मॉक्स अ मैन नेम्ड ज़ियाद, ज़ियाद को जो है ना इन्होंने मजम्मत की है, इब्ने ज़ियाद की मजम्मत की है अपने इन अशार में। द करंट गवर्नर ऑफ द एरिया अराउंड इराक़, इराक़ के अतराफ जो एरिया था वहाँ पर ये गवर्नर था ज़ियाद बोल के। ओके, हु हैड टेकन ऑब्जेक्शन टू द पोएट लैम्पूनिंग वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जिसने इसकी शायरी पे एतराज़ किया और उसके एक दोस्त को पकड़ लिया। द गवर्नर हैड ऑफर्ड फरजदक एन इंटरव्यू इन ऑर्डर टू कंसिलिएट बट द लैटर रिप्लाइड विथ, गवर्नर जो है फरजदक को बुला के उनसे कुछ बात करने की कोशिश करा, लेकिन आप नहीं माने, बल्कि आप उसको जो है अपनी मजम्मत पे कायम रहे और बजाय उसके उसको जो है रिप्लाई दी ये कहकर। ही वेव द पे रोल लेट्स हिम आई थॉट सो लॉन्ग एज मैन वर्थ क्रेडिट वॉक, कब तक हम जो है लोगों के दबाव में आके कहते रहेंगे, बल्कि हम जो है ना ये मैं पे रोल छोड़ता हूँ। ही वेव द पे रोल लेट हिम आई थॉट, उन्होंने जो करते हैं करने दो, मैं जो सोचता हूँ वो मैं सोचूंगा। एज लॉन्ग एज मैन वर्थ क्रेडिट वॉक, या जब तक के जो है ना हमको इसका जो है इसकी जो है सज़ा बाजियाबी मिलती रहे। ऑन दिस अर्थ besieging Ziyad at the gates are plenty of men in the street for him, ज़ियाद के इस्तकबाल के लिए बहुत कम लोग खड़े हैं, जबकि ज़ियाद जो है बहुत गाफिल पड़ा हुआ है और उन्हें जो है ना किसी के बारे में सोचता ही नहीं। टू एनरोल इफ़ ही विश्ड सम क्राई फॉर द मून, अगर वो चाहे तो जो है ना उसको जो है ना रोना चाहिए। बट द मैनी आर नो मोर दैन नीड, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि
ये हमको, ये ज़ियाद गवर्नर की हमको ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा गवर्नर नहीं है। गेसिंग देन दैट द क्लिंक ऑफ कैश माइट चेंज ओवरनाइट टू द क्लैंक ऑफ चेंज। पैसा जो है हो सकता है कि बाज़ लोगों की राय को बदल दे। I jumped to a jade worn thin to the bone from nightly parades of the deadbeat land. मैं वहाँ से निकलकर दूसरे एरिया की तरफ कूच करा। वो मुर्दा ज़मीन में रहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं एरिया छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा हूँ बोल के फरजदक वो बस्ती छोड़ के दूसरी बस्ती को चले गए थे। ये बोल रहे हैं इसके अंदर। नाउ वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 3 फ्रॉम द सेम सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ अरेबिक लिटरेचर। अब्रज़ु शोरा, अब्रज़ु अशोरा, अब्रज़ु शोराई फिल असरिल उमवी। अब्रज़ु शोराई फिल असरिल उमवी। prominent poets of Umayyad period. प्रोमिनेंट पोएट्स ऑफ उमैयद पीरियड, ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले पढ़े कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ उमैयद रूलर्स मेनी यंग पोएट्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स केम आउट टू कंपोज वर्सेस दैट लेफ्ट नॉट स्टोन अनटर्न्ड फॉर डेवलपमेंट Arabic language and literature. Among these thinkers and philosophers, we may the notable ones are Jarir, Akhtal, Farazdaq, Umar bin Abi Rabia. उमैयद पीरियड के जो बेहतरीन शोरा है, जो ज़्यादा मशहूर थे, उनमें जरीर, अख्तल, फरजदक और उमर बिन अबी रबिया था। ये चार पोएट्स जो है बहुत ही माने हुए शायर जाने जाते थे उमैयद पीरियड के। ये लोगों ने, न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके अलावा दूसरे लोग भी जो है पोएट्री को कंपोज़ किए, प्रोज को कंपोज़ किए। इसमें फ़िलासफ़र्स भी थे और जो है बड़े बड़े मुफ़क्किरीन भी जो है ना पैदा हुए यही दौर में। तो पहले, सबसे पहले हम जरीर के बारे में पढ़ेंगे, शायर जरीर। और ये जरीर जो है अहम चीज़ है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है जरीर का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, समझे। हो सकता है ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी आए और शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है। जरीर के बारे में मालूमात रखना ज़रूरी है, ठीक है। जरीर, अख्तल, फरजदक, ये लोग जो है नोटेबल पोएट्स है, ठीक है। आइए अब जरीर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। जरीर क्या है उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये है कि अगर इसका क्वेश्चन ये दे सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट जरीर, ये पूछ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट जरीर। अभी ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको लिखना है इसका जरीर के बारे में, आपकी ज़िंदगी कैसी थी, क्या है और क्या लिखते थे आप, वो लिखना है। जरीर इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ उमैयद पीरियड। जरीर जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर शायर था उमैयद पीरियड का, उमवी दौर का मशहूर शायर था जरीर। हिज ओरिजिनल नेम वॉज जरीर बिन अतिया अल क़तफ़ी अत-तमीमी। इनका असली नाम जो है जरीर बिन अतिया क़तफ़ी अत-तमीमी था। ही वॉज बॉर्न इन यमामा, ये यमामा में पैदा हुए थे, इन द रीजन ऑफ खलीफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में ये पैदा हुए थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन दी विलेज एटमॉस्फियर, वो बड़े हुए गांव की ज़िंदगी में, उनकी नशोनुमा हुई और बड़े हुए। हीज़ लैंग्वेज वॉज प्योर एंड मेलोडियस, उनकी ज़ुबान शीरी और मीठी थी, बहुत अच्छी ज़ुबान रखते थे। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग फाइटर, न सिर्फ ये मीठी ज़ुबान रखते थे बल्कि एक जंगजू भी थे साथ में, बहुत ही सख्त जंगजू थे, अच्छा लड़ने वाले भी थे। ही हैज़ स्पेंट हिज लाइफ इन
पोएटिक टूर्नामेंट्स। उन्होंने अपनी ज़िंदगी शेर शायरी के मुकाबलों में गुजारा करते थे। शेर शायरी के टूर्नामेंट्स, कॉम्पिटिशन जो जहाँ भी होते वहाँ पर ये जाके हिस्सा लिया करते थे। He was courageous, वो हिम्मत वाले थे। प्योरर इन हार्ट, उनका दिल जो है साफ था। गुड इन कैरेक्टर, और उनकी जो अखलाक थे अच्छे थे। बिटर इन सटायर, जबकि अगर किसी की मजम्मत करने पे उतरते तो बहुत ही कड़वे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। स्वीट इन अमोरोस टॉक, एक्सपर्ट इन मॉर्निंग, जबकि अगर किसी का दिल लुभाना है तो बेहतरीन बात करते थे, और अगर किसी का गम मनाना है तो बेहतरीन अशार लिख के उसका गम और जो है ना नौहा किया करते थे। ही वॉज द नेटिव ऑफ अल यमामा, आप यमामा के रहने वाले थे, बट आल्सो स्पेंड टाइम इन दमस्कस, और जो है दमस्कस में यानी दमिश्क में भी आपने वक्त गुजारा। एट द कोर्ट ऑफ उमैयद पीरियड, जब उमैयद पीरियड के दौर में कोर्ट में भी आपने वक्त गुजारा। ही यूज टू अर्न हिज लाइवलीहुड बाई प्रेजिंग द किंग्स एंड कैलिफ्स, उनका ज़रिए माशी ये था कि शेर शायरी करना, बादशाहों की तारीफ़ में और खलफा की तारीफ़ में शेर शायरी करके पैसा कमाना उनका मकसद था। आफ्टरवर्ड्स ही रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस यमामा, उसके बाद आप जो है अपनी नेटिव प्लेस यमामा वापस आ गए। एंड डाइड इन द ईयर 728 आफ्टर ही ही डाइड देयर इन 728 AD। यमामा वापस आ गए नेटिव प्लेस पे और उनका वहीं इंतकाल हो गया। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने का है।